हेलो फ्रेंड्स, सो होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। होप आप सबकी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी बिकॉज एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन का डेट कभी भी निकल सकता है। बट रिमेंबर दैट इग्नो ने ऑब्वियसली ये बोल रखा है कि 15 दिन पहले ये नोटिफाई कर दिया जाएगा कि टेंटेटिव रूटीन या जो एनुअल रूटीन है वो कब होगा। So in today's session we are going to discuss about Hamlet by William Shakespeare. Basically the entire name of the play is Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. So before we go to the play, a couple of announcements regarding our channel. So we have finally decided to open a Facebook page and a Facebook group for more active discussion regarding the MEG syllabus of IGNO, basically the MA in English. So the link of which is given in the description. Guys, do go there and like our page, and whatever queries you have you can post there. You can have a healthy conversation there. So we are also giving the description link of our playlist of various subjects that we will be posting in a couple of days and which I have already posted. So without any further ado, let's move on to the main video. So basically the tragedy of Hamlet, Prince of Denmark was written by William Shakespeare between 1599 and 1601. So he has taken a considerable period of time to write this play, and also you can understand the fact that it is one of the longest play. Actually it is the longest play written by Shakespeare with around 30,557 words. So you can just imagine what amount of effort William Shakespeare has put into it. And also it is one of the most decorated and celebrated work of William Shakespeare, which is even now complemented by a lot of authors and poets. So the entire play is divided into 5 acts by William Shakespeare, and as mentioned before, it is the longest play written by William Shakespeare. So we will not be discussing scene by scene enactment in details in this play. Rather we will be focusing more on the plot summary and the major characters in this play, so that you get a major trust and a boost for competing in your exams and understanding the story in a short period of time. Of course, without your telling, also we'll be covering more detailed videos on the scene by scene enactment in the next couple of days after we complete the entire syllabus of British drama of your MEG2 paper. So दोस्तों, कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि डेनमार्क के जो किंग थे, किंग हैमलेट, उनका निधन हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है और उनके जो भाई थे क्लॉडियस, उनको राजा बना दिया जाता है। और साथ में ये भी दिखाया जाता है कि क्लॉडियस इमीडिएटली क्या करते हैं, राजा बनते ही वो क्या करते हैं, वो हैमलेट, किंग हैमलेट अपने बड़े भाई के जो वाइफ थे, जो विडो थे गर्टरूड, उनसे शादी कर लेते हैं। तो कहानी के शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से, एक अंधेरी ठंडी रात से, जहाँ पे कुछ वॉचमैन्स को जो एल्सिनोर कैसल का रखवाली करते हैं, उनको एक भूत दिखाई देता है, बेसिकली एक स्पिरिट दिखाई देता है, और वो ये सब देख के बहुत काफ़ी डर जाते हैं और इवेंचुअली क्या करते हैं, वो इन्फॉर्म करते हैं होरेशियो को। अभी होरेशियो कौन है? होरेशियो हो गए किंग हैमलेट के जो बेटे थे, जिनका नाम भी हैमलेट था, उनका बहुत ही क्लोज फ्रेंड होरेशियो थे। तो होरेशियो को इन्फॉर्म करते, वो वॉचमैन और होरेशियो मिल के क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो जाके बता देंगे ये बात हैमलेट को, ठीक है। So the ghost resembles the recently deceased King Hamlet, whose brother Claudius has inherited the throne and married the king's widow, Queen Gertrude. When Horatio and the watchman bring Prince Hamlet, the son of Gertrude, and the dead king to see the ghost, it speaks to him, declaring that it is indeed his father's spirit, and that he was murdered by none other than Claudius. Ordering Hamlet to seek revenge on the man who usurped his throne and married his wife, the ghost disappears with the dawn. तो यहाँ पे एक मेजर डिस्क्लोजर देखने को मिलता है हम लोग के स्टोरी के प्ले के बिगिनिंग में ही। जो घोस्ट या स्पिरिट वॉचमैन और होरेशियो को नज़र आते हैं, उनको ये लगता है, ये बात का उनको ये डाउट होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जो किंग हैमलेट थे वो खुद ही उनका घोस्ट था। तो जब हैमलेट को इस बात का पता चलता है तो वापस उस बात को कंफर्म करने आते हैं, और जब वो वहाँ पे आते हैं तो उनको ये घोस्ट दिखाई भी देता है। इनफैक्ट वो घोस्ट और कोई नहीं होता बट किंग हैमलेट ही होते हैं, उनका स्पिरिट होता है, जो बताते हैं कि उनका जो डेथ हुआ था वो नेचुरल नहीं था, बल्कि उनको उनके भाई ने, क्लॉडियस ने, सोते वक्त उनके कान में जहर डाल के मारा था, ठीक है। तो जो किंग हैमलेट के जो स्पिरिट थे वो बोलते हैं प्रिंस हैमलेट को कि उनको अभी रिवेंज लेना है क्लॉडियस से, ठीक है। Prince Hamlet devotes himself to avenging his father's death,
But because he is contemplative and thoughtful by nature, he delays, entering into a deep melancholy and even apparent madness. Claudius and Gertrude worry about the prince's erratic behavior and attempt to discover its cause. They employ a pair of Hamlet's friends, Rosencrantz and Guildenstern, to watch him. When Polonius, the pompous Lord Chamberlain, suggests that Hamlet may be mad with love for his daughter Ophelia, Claudius agrees to spy on Hamlet in conversation with the girl. But though Hamlet certainly seems mad, he does not seem to love Ophelia. He orders her to enter a nunnery and declares that he wishes to ban marriages. सो अपने पिता के आत्मा के साथ कन्वर्सेशन के बाद प्रिंस हैमलेट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनका बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा इरेटिक और डिस्टर्ब हो जाता है, जिस बात को क्लॉडियस और गर्ट्रूड नोटिस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लॉडियस इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि प्रिंस हैमलेट का बिहेवियर इस तरह से चेंज क्यों हुआ है। तो उसी दौरान क्या होता है कि हैमलेट के दो फ्रेंड्स होते हैं, रोजनक्रैंस और गिल्डनस्टर्न, उन्होंने भी उन्हीं के साथ पढ़ाई किया था, तो वो डेनमार्क में आते हैं। तो क्लॉडियस क्या करते हैं, क्लॉडियस इन दोनों को बोलते हैं कि हैमलेट पे नज़र रखे, टू स्पाई ऑन हिम। ठीक है, स्टोरी में आगे दिखाया जाता है कि एक कैरेक्टर नया है, पोलोनियस, जो बहुत ज़्यादा लॉयल है क्लॉडियस को लेके। वो एक लॉर्ड थे जो किंग क्लॉडियस के कोर्ट में भी प्रेजेंट रहते थे। तो वो ये क्लॉडियस को बोलते हैं कि शायद हैमलेट का ये चेंज बिहेवियर इसलिए हो रहा है क्योंकि हैमलेट उनकी बेटी जो है ओफेलिया उनके प्यार में पागल हो गया है। तो क्लॉडियस क्या करते हैं, क्लॉडियस ये बात भी कंफर्म करना चाहते हैं क्या सच में हैमलेट का चेंज बिहेवियर ओफेलिया के वजह से हो रहा है। तो वहाँ पे आगे स्टोरी में ये दिखाया जाता है कि हैमलेट ये कन्फेस करते हैं कि वो ओफेलिया से प्यार नहीं करते और वो सारे गिफ्ट्स वापस भी कर देते हैं। इसी बीच आपको ये बात भी जानना है कि जो पोलोनियस थे वो इस बात को कभी अप्रूव नहीं करते थे कि ओफेलिया, उनकी जो बेटी है, वो प्रिंस हैमलेट के साथ कोई भी रिलेशनशिप में आए। A group of traveling actors come to Elsinore and Hamlet seizes upon an idea to test his uncle's guilt. He will have the players perform a scene closely resembling the sequence by which Hamlet imagines his uncle to have murdered his father, so that if Claudius is guilty, he will surely react. When the moment of the murder arrives in the theatre, Claudius leaps up and leaves the room. Hamlet and Horatio agree that this proves his guilt. Hamlet goes to kill Claudius but finds him praying. Since he believes that killing Claudius while in prayer would send Claudius' soul to heaven, Hamlet considers that it would be an inadequate revenge and decides to wait. Claudius, now frightened of Hamlet's madness and fearing for his own safety, orders that Hamlet be sent to England at once. सो स्टोरी में आगे ये दिखाया जाता है कि रोजनक्रैंस और गिल्डनस्टर्न के साथ ऐसा एक ग्रुप आया हुआ होता है जो बेसिकली दूसरे जगहों में जाके थिएटर करते हैं, स्टेज करते हैं। तो इसी के चलते प्रिंस हैमलेट को ये आइडिया आता है कि क्यों ना ऐसा एक प्ले किया जाए जो उसके फादर के डेथ के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर हो। इसके चलते क्या होगा कि वो किंग क्लॉडियस का रिएक्शन देख पाएंगे और अगर वो गिल्टी है तो उसका एक्सप्रेशन से उनको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो फाइनली ये डिसाइड होता है कि वो करेंगे द मर्डर ऑफ गोंजागो का प्ले और उसके बाद वो देखेंगे रिएक्शन ऑफ किंग क्लॉडियस। तो ऐसा होता भी है, जब वो प्ले चल रहा होता है किंग क्लॉडियस बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बिकॉज उस प्ले का स्टोरी काफ़ी हद तक सिमिलर है जैसे उन्होंने अपने भाई को मारा था और वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। हैमलेट को और होरेशियो को इस बात का कंफर्मेशन हो जाता है कि इट्स नन अदर देन किंग क्लॉडियस जिन्होंने अपने भाई को मारा है फॉर द थ्रोन एंड द वाइफ। ठीक है, तो हैमलेट भी पीछे पीछे जाते हैं क्लॉडियस के, उनके पीछे जाते हैं उनको मारने के लिए, बट वो देखते हैं कि क्लॉडियस अंदर जाके प्रेयर कर रहे होते हैं। तो हैमलेट वहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रेयर के टाइम अगर उन्होंने क्लॉडियस को मार दिया तो उनको हेवन की प्राप्ति होगी, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और वहाँ से वो चले जाते हैं अपने माँ के रूम में, गर्ट्रूड के रूम में। ठीक है, गर्ट्रूड के रूम में उनको गलती से उनके हाथों से क्या हो जाता है, पोलोनियस का डेथ हो जाता है। हैमलेट गोज टू कन्फ्रंट हिज मदर इन हुज bedchamber Polonius was hidden behind a tapestry. Hearing a noise from behind the tapestry, Hamlet believes that the king is hiding there. He draws his sword and stabs through the fabric, killing Polonius. For this crime, he is immediately dispatched to England with Rosencrantz
and Guildenstern. However, Claudius' plan for Hamlet includes more than banishment, as he has given Rosencrantz and Guildenstern sealed orders for the King of England, demanding that Hamlet be put to death. तो जब पोलोनियस प्रिंस हैमलेट के हाथों मारे जाते हैं तो किंग क्लॉडियस बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो प्रिंस हैमलेट को बैनिश कर देते हैं डेनमार्क से और उनको बोलते हैं कि आप इंग्लैंड चले जाओ अपने दोस्तों के साथ, रोजेनक्रैंस और गिल्डनस्टर्न के साथ। बट इसमें भी किंग क्लॉडियस का एक हिडन प्लान रहता है। वो क्या करते हैं कि वो प्रिंस हैमलेट के दोस्तों के हाथों एक सील्ड ऑर्डर भिजवाते हैं किंग ऑफ इंग्लैंड के नाम पे कि हैमलेट जब भी इंग्लैंड पहुंचे उनको इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर दिया जाए। In the aftermath of her father's death, Ophelia goes mad with grief and drowns in the river. Polonius' son Laertes, who has been staying in France, returns to Denmark in a rage. Claudius convinces him that Hamlet is to blame for his father's and sister's death. When Horatio and the king receives letters from Hamlet indicating that the prince has returned to Denmark after pirates attacked his ship on road to England, Claudius concocts a plan to use Laertes' desire for revenge to secure Hamlet's death. Laertes will fence with Hamlet in innocent sport, but Claudius will poison Laertes' blade so that if he draws blood, Hamlet will die. As a backup plan, the king decides to poison a goblet, which he will give Hamlet to drink should Hamlet score the first or the second hits of the match. Hamlet returns to the vicinity of Elsinore just as Ophelia's funeral is taking place. Stricken with grief, he attacks Laertes and declares that he had in fact actually loved Ophelia. Back at the castle, he tells Horatio that he believes one must be prepared to die, since death can come at any moment. A foolish courtier named Osric arrives at Claudius' orders to arrange the fencing match between the Hamlet and Laertes. सो स्टोरी में आगे ये दिखाया जाता है कि जो प्लान था किंग क्लॉडियस का कि वो प्रिंस हैमलेट को किंग ऑफ इंग्लैंड के हाथों मरवा देंगे, वो फेल हो जाता है और प्रिंस हैमलेट वापस डेनमार्क आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन द मीन टाइम ऐसा दिखाया जाता है कि लार्टस जो थे, जो कि पोलोनियस के बेटे थे और ऑफेलिया के भाई थे, वो वापस डेनमार्क आ जाता है। उनको पता चलता है कि पोलोनियस प्रिंस हैमलेट के हाथों मारे जा चुके हैं और उनकी जो बहन थी ऑफेलिया, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो लार्टस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो इस बात का बदला लेना चाहते हैं। इन द मीन टाइम ऐसा होता है कि हैमलेट भी वापस डेनमार्क आ जाते हैं और जब वो आते हैं तब ऑफेलिया का फ्यूनरल हो रहा होता है और वहाँ पे उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। किनका झगड़ा होता है? लार्टस और हैमलेट का। किंग क्लॉडियस को आइडिया आता है कि क्यों ना इन दोनों के बीच एक फेंसिंग मैच रखा जाए। बेसिकली फेंसिंग मैच एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है जहाँ पे दो ओपोनेंट तलवारों से लड़ाई करते हैं एक दूसरे के साथ। वो एक्चुअली डेथ एंड किल मैच नहीं होता गाइस, बेसिकली हिट करना पड़ता है दूसरे ओपोनेंट को टू स्कोर योर पॉइंट्स। सो क्लॉडियस ऐसा प्लान करते हैं कि वो लार्टस का जो स्पारिंग सोर्ड है उसमें जहर लगा के रखेंगे और अगर लार्टस ये मैच जीत जाए तो ड्यूरिंग द स्पार क्या होगा, प्रिंस हैमलेट का डेथ हो जाएगा। और उन्होंने एक बैकअप प्लान भी बना के रखा हुआ होता है जिसमें वो ये सोचते हैं कि अगर हैमलेट जीत जाए ये स्पारिंग मैच तो वो उनको एक वाइन ऑफर करेंगे एक ग्लास में जिसमें वो जहर मिला के रखे हुए होंगे। और इन बोथ सिनेरियोज उनका जो प्लान था वो काफ़ी ज़्यादा फुल प्रूफ था। होरेशियो जो होते हैं वो उनको इस बात का थोड़ा बहुत डाउट भी रहता है, तो वो क्या करते हैं, वो वार्न करते हैं प्रिंस हैमलेट को कि ये स्पारिंग मैच में वो एंटर ना करे। बट क्या होता है, प्रिंस हैमलेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड रहते हैं और उनको ये पता रहता है, थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि मतलब एवरीवन शुड बी प्रिपेयर्ड टू डाई। The sword fighting begins. Hamlet scores the first hit but declines to drink from King's proffered goblet. Instead, Gertrude takes a drink from it and is swiftly killed by the poison. Laertes succeeds in wounding Hamlet, though Hamlet does not die of the poison immediately. First, Laertes is cut by his own sword's blade, and after revealing to Hamlet that Claudius is responsible for the queen's death, he dies from the blade's poison. Hamlet then stabs Claudius through with the poisoned sword and forces him to drink down the rest of the poisoned wine. Claudius dies and Hamlet dies immediately after achieving his revenge. So मैच के शुरुआत में क्या होता है कि हैमलेट पहला पॉइंट सिक्योर कर लेते हैं, वो थोड़ा बहुत बेहतर होता है लार्टस से इन सोर्ड फाइटिंग इन फेंसिंग। और किंग क्लॉडियस क्या करते हैं, उनको ऑफर करते हैं एक ग्लास में वाइन जो हैमलेट रिफ्यूज़ कर देते हैं और उस ग्लास के वाइन को गर्ट्रूड पी लेती हैं और वहाँ पे उनका डेथ हो जाता है। जबकि किंग क्लॉडियस ये नहीं चाहते थे कि गर्ट्रूड उसको पिए।
इन द मीन टाइम क्या होता है कि लार्टस इस मौके का फ़ायदा उठा के हैमलेट को इंजोर कर देते हैं और उसी फाइट के चलते उन लोग का सोर्ड्स भी एक्सचेंज हो जाता है, जिसके चलते हैमलेट क्या करते हैं, लार्टस को मार देते हैं। बट मरने से पहले लार्टस ये बता देते हैं कि किंग क्लॉडियस का ये पहले से प्लान था हैमलेट को मरवाने का। तो हैमलेट को जब ये पता चलता है कि मतलब इस प्लान के चलते उनका माँ का भी देहांत हो जाता है, वो मर जाते हैं वो पॉइजन वाला ड्रिंक पी के, तो किंग प्रिंस हैमलेट क्या करते हैं, वो क्लॉडियस को फाइनली मार देते हैं और खुद भी मर जाते हैं इस फाइट के एंड तक। At this moment, a Norway prince named Fortinbras, who had led an army to Denmark and attacked Poland earlier in the play, enters with ambassadors from England who report that Rosencrantz and Guildenstern are dead. Fortinbras is stunned by the gruesome sight of the entire royal family lying sprawled on the dead floor. He moves to take power of the kingdom. Horatio, fulfilling Hamlet's last request, tells him Hamlet's tragic story. Fortinbras orders that Hamlet be carried away in a manner befitting a fallen soldier. So this is the video, guys. Hope you have understood the basic plot summary of Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark by William Shakespeare. In case if you have any other doubts regarding this play or any other literary work, do feel free to comment in the comment section. We'll definitely try to cover it up. Also do consider subscribing to this channel and switching on the notification bell, and also recommending it to your friends. Till then, God bless you and thank you all.